Good morning, students. Today we will read about the magnetic field and magnetic field lines. Magnetic field lines. So, what is the magnetic field? What is the magnetic field? In the previous class, we have read that like pole of magnets that repel to each other, and unlike pole of magnet attract to each other. And magnet have a property to attract the small piece of iron, nickel and cobalt. So suppose we take a magnet here, then the space around the magnet up to which it can exert its magnetic force, this is called the magnetic field. In the magnetic field of a magnet is the space around the magnet up to which it can exert its magnetic force. Again you listen, what is the magnetic field? The space around a magnet up to which it can exert its magnetic force is called the magnetic field. As you know that when we will go far away of the magnet, then the strength of the magnetic field decreases. So when we will go far away at a distant point, then the magnetic force will be very less, and when we will go up to infinity, so at that point you can say that the magnetic force of the magnet is zero. Then we can consider that the magnetic field of a magnet is separated up to infinity. So what is the magnetic field? The space around a magnet up to which it can exert the magnetic force is called the magnetic field. Now when we will go on the strength of the magnetic field, that intensity of magnetic field is represented by the symbol B. What is the symbol of magnetic field? B. The SI unit of magnetic field is Tesla. And the CGS unit of magnetic field is Gauss. And there is a relation between the Tesla and Gauss. 1 Tesla can be written as 10 to the power 4 Gauss. And magnetic field is a vector quantity. That means it have magnitude as well as direction. This is the magnetic field. Now we will read about the magnetic field lines. So what is the magnetic field lines? So actually the magnetic field of a bar magnet is given as, you can see the picture from the book also. This is a bar magnet. Then the magnetic field of a bar magnet is represented by this diagram. This is the magnetic field line due to a bar magnet. This is so actually what is the magnetic field lines? The definition, just magnetic field lines are the imaginary lines. Around a magnet which represent the pattern of magnetic field due to the given magnet. What are the magnetic field lines? Magnetic field lines are the imaginary lines drawn around the magnet to represent the पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, यानी किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं. क्या करते हैं? इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं. तो दिस इमेजिनरी लाइन
is known as the magnetic field lines. Magnetic field lines. You can define it. What is the magnetic field lines? Magnetic field lines are the imaginary lines drawn around a magnet to represent the pattern of magnetic field due to the magnet. To represent the pattern of magnetic field due to the magnet are called the magnetic field lines. Are called the magnetic field lines. Now this is the magnetic field lines due to the bar magnet. This is magnetic field line due to the bar magnet. Now this magnetic field lines can be drawn with the help of the iron filling, with the help of the compass needle also. यदि हमको किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करना है तो उसके लिए कैसे ड्रा करेंगे? सिंपल मेथड है बाय यूजिंग द आयरन फिलिंग. जैसे हम लोग यहाँ पे ये एक्टिविटी ये कर सकते हैं. यदि यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के ऊपर एक हम लोग ऊपर से ले लिए बटर पेपर, यानी बहुत हल्का कोई पेपर ले लिए, और जो पेपर के ऊपर से हम लोग क्या करें, इस तरीके से जब आयरन फिलिंग को गिराएंगे, यानी उसको स्प्रिंकल करेंगे, धीरे धीरे ऊपर से जब गिराएंगे तो वो जो आयरन के फिलिंग्स होंगे उस पेपर के ऊपर अरेंज कर अपने आप को अरेंज करेंगे. जो उनका अरेंजमेंट होगा तो देखेंगे तो उसकी जो पोल होगा तो इस पोल पॉइंट पे जो हमारा आयरन फिलिंग्स होंगे वह इस तरह से ज़्यादा हमारे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग आ जाएंगे. और यहाँ पे जो फीलिंग्स होंगे वो कम आएंगे. और यहाँ पे जो लाइनिंग होगी आयरन फिलिंग वो इस तरीके से लाइनिंग के फॉर्म में थोड़ा अपने आप को अरेंज कर लेंगे. तो जो आयरन फिलिंग का अरेंजमेंट होगा दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट विल गिव द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. In this way we can draw the magnetic field lines of a bar magnet with the help of the iron fillings. और इस तरीके से हम लोग कंपास नीडल का भी यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकते हैं. हाँ, नाउ एक पार्ट और ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी हमारे पास बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बहुत क्लोजली होती है, मतलब बहुत पास होती हैं. जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास होती है तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वह मैक्सिमम होता है. यानी किसी भी मैग्नेट के पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है. और जब बीच में कहीं दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती जाती है. तो एक चीज़ यहाँ से हम लोग भी याद रखेंगे कि हमारे पास कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ऐसे पैरेलल दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ये हमारे एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो कहेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह यूनिफॉर्म है. कैसा है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है हर पॉइंट पे. लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पैरेलल नहीं होगा, नॉन पैरेलल इस तरीके से दिया हुआ है, तो जिस पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है वहाँ पे स्ट्रेंथ अधिक होती है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा. अब बात करते हम लोग हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं. कैसी होती हैं, तो ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी. सेकेंड पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं डेट फॉर्म अ क्लोज लूप, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है. मतलब जैसे इधर से गया इस तरीके से तो वह अंदर से आकर के इस तरह आपस में क्या होती हैं, मिली होती हैं. इस तरह क्या होती हैं, मिली होती हैं. मतलब ये ऐसे क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं. क्या करती हैं, एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स. दूसरी प्रॉपर्टी होगी. तीसरी प्रॉपर्टी, that the direction of tangent at any point of a magnetic field, suppose this is the magnetic field lines, then at point P this is the tangent, then the direction of tangent at any point of a magnetic field lines gives the direction of magnetic field, यानी ये कहें कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा तो इसी टेंजेंट के अलांग होगा. मतलब पॉइंट इस पे बात करेंगे, ये पॉइंट A है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का होती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये इसका टेंजेंट है.
नहीं, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उस पॉइंट पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं उसी टेंजेंट के अलांग में ही होता है, उसके डायरेक्शन में ही होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी देयर, 2 or more मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? रीजन क्या? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन क्या है? जैसे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो कि ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारे पास ये है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई, दोनों पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। यदि मानते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट ड्रा करें तो इसके लग जाएगा, और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसके लग जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन हो गए। जब एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन होंगे, दो दो टेंजेंट होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि पैरेलल हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? यदि पैरेलल है तो कहेंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यदि नॉन पैरेलल हैं तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट यदि कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे, जहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि हमारा क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली यानी बहुत पास पास हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ अधिक होगा, और जिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, एक पॉइंट और कह सकते हैं, किसी भी यदि बार मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मूव टुवर्ड्स द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, यानी किसी भी मैग्नेट के बाहर देखेंगे तो हमेशा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और किधर जाएगा? साउथ के डायरेक्शन में जाएगा। बट इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, थैंक यू गाइज। नाउ जस्ट कंप्लीट द नोट ऑन द टॉप टॉपिक।